السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ بھارت کے کھلاڑیوں کا جینٹل مین گیم کے ساتھ کھلواڑ۔ بھارتی کھلاڑیوں پر آج بھی بوم شاہد افریدی کا ڈر برقرار۔ شاہد افریدی کے ڈر سے بھارت کے کھلاڑیوں نے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی کھلاڑی یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، ہربھجن سنگھ، سریش رائنا اور یوراج سنگھ نے میچ کھیلنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر شاہد افریدی پاکستان کی طرف سے کھیلے تو ہم میچ نہیں کھیلیں گے، جس کے باعث لندن میں ہونے والی ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والا میچ آج منسوخ کر دیا گیا۔ انتظامیہ WCL کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ کے باقی میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ شائقین کو آج کے میچ کے ٹکٹ کی رقم واپس کر دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے سینٹ امیدواروں میں بغاوت، قیادت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ عرفان سلیم، خرم ذیشان، عائشہ بانو سمیت کئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا اور بانی چیئرمین کے نظریے پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی قیادت اور سیاسی کمیٹی نے بانی چیئرمین کی دی گئی امیدواروں کی فہرست کو حتمی قرار دیتے ہوئے ناراض امیدواروں کو دستبرداری کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینٹ امیدواروں کی بغاوت، قیادت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ناراض امیدواروں کا سینٹ الیکشن میں قیادت کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ عرفان سلیم، خرم ذیشان، عائشہ بانو، وقاص اورکزئی اور دیگر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا۔ خرم ذیشان نے کہا، ہم گٹھ جوڑ، مفاہمت، مصلحت کو مسترد کرتے ہیں، اصولوں پر کھڑے ہیں۔ فارم 47 سے بننے والی ناجائز حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ ضمیر فروشوں کا کام ہے، ہمارے لیڈر کا نظریہ نہیں۔ عائشہ بانو نے اعلان کیا، سینٹ کی نشست ایسے لوگوں کو کیوں دیں جنہوں نے پارٹی کا مینڈیٹ چرایا، ہم عمران خان کے نظریے پر ڈٹے ہیں۔ عرفان سلیم نے بھی قیادت کے حکم کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ افراد کو اسمبلی میں لانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جو قبول نہیں۔ ہماری پارٹی کی سیٹیں ہیں، اس پہ صرف اور صرف ہمارے پارٹی کے لوگوں کا حق بنتا ہے۔ میرا یہ اصول فرض بنتا ہے کہ میں انشاءاللہ اس حق پہ اور اس بات پہ کھڑی رہوں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ لوگوں کو سینٹ میں لانے کے لیے جو گٹھ جوڑ کیا گیا ہے، ہم اس گٹھ جوڑ کے خلاف بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں، ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان کہتے ہیں، سینٹ الیکشن کے لیے بانی پی ٹی آئی نے جو لسٹ دی وہی حتمی ہے اور کارکنوں کو اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ سینٹ الیکشن کی جو لسٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اپروو کی ہے۔ اپنی ہمشیرگان کو بھی کہا کہ جو میں نے لسٹ دی ہے وہ فائنل ہے اور حتمی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے بانی چیئرمین عمران خان کی دی گئی امیدواروں کی فہرست کا دفاع کیا اور مشال یوسفزئی سمیت دیگر پر اعتراضات کے باوجود انہیں قبول کر لیا۔ کمیٹی نے اپوزیشن سے مفاہمتی فارمولے کی توثیق کرتے ہوئے ناراض امیدواروں کو کاغذات واپس لینے کی ہدایت جاری کی اور انکار کی صورت میں نوٹس پر غور کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی کا ناراض رہنماؤں کے خلاف نون لیگ، پی پی اور جے یو آئی سے مل کر سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے ناراض امیدواروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ پیپلز پارٹی امیدوار طلحہ محمود کے مطابق پی ٹی آئی کے ناراض امیدوار دستبردار نہیں ہوئے تو حکومت اور اپوزیشن مل کر الیکشن لڑیں گے۔ طلحہ محمود کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس میں علی مین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جن امیدواروں کو بانی پی ٹی آئی نے نامزد نہیں کیا وہ کاغذات واپس لیں۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کارروائی ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری نے پی ٹی آئی پر تنقید کی اور کہا کہ خیبر پختونخوا کے سینٹ کی ٹکٹ کے لیے تحریک انصاف میں بولیاں لگی ہیں، پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی ہے۔ تحریک انصاف کے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے خود اپنی لیڈرشپ کے پول کھول دیے۔ بانی پی ٹی آئی بھی اس ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے حصے دار ہے۔ اس ہارس ٹریڈنگ کے مخالف جماعت سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کی حمایتی ہے۔ تحریک انصاف میں مارے کھانے کے لیے کارکن اور اقتدار انجوائے کرنے کے لیے موسمی پرندے رکھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بھی سینٹ ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے مکمل باخبر ہیں۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی بشا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی نظر بندی کو 2 سال مکمل ہوں گے۔ مشال یوسفزئی کو سینٹ کا ٹکٹ دینے میں بشا بی بی کوئی کردار نہیں۔ مشال یوسفزئی نے بطور ترجمان بشا بی بی کے ساتھ کام کیا۔ مشال یوسفزئی 5 ماہ سے کسی کے ترجمان نہیں۔ مشال یوسفزئی کا پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے کوئی سیاسی تعلق نہیں۔ ورکرز کو نظر انداز کرنا تحریک انصاف کی روح کے خلاف ہے۔ پارٹی ورکرز باخبر اور جمہوری سوچ رکھتے ہیں، ان کی قدر ضروری ہے۔
को कहा हो कि जी मेरी तरफ से नॉमिनेशन, और वो कभी इस तरह की बात करती भी नहीं है। तो बुशरा इमरान के तर्जमान के तौर पे मशाल बीबी को तकरीबन महीने पहले हटा दिया गया था। वो ठीक है, जब तक वो उनकी तर्जमान रही, वो अंदर आती थी, बीबी की जाके बाहर बात करती थी। उससे ज्यादा तो बीबी ना उनको पहले जानती थी, और अब 5 महीने से तो वो उनकी तर्जमान भी नहीं है। तो अगर आप मेरिट पे टिकट नहीं देंगे तो ऐसे वर्कर्स जो हैं वो डिस्करेज होते हैं। तो इट शुड ऑल बी अबाउट मेरिट, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इसमें मौरूसी सियासत या वास्ते और उसकी तो नेपोटिज्म की सियासत तो नहीं है, हमारी पार्टी में ना होनी चाहिए। तो 5 अगस्त को खान साहब की इलीगल इनकार्सेनेशन को 2 साल हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बानी और पीटीआई के बुग़्ज़ में कुदरती सानियात पर सियासत करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा बन चुका है। वज़ीर आला अली गंडापुर ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करके पंजाब में सानियात से बचने के लिए मदद की ऑफ़र की। नून लीग के वज़रा कम ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करके कुदरती सानियात पर भी सियासत चमका रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ अगर सानियात सवाद को करप्शन से जोड़ रहे हैं तो पंजाब के सानियात को क्या नाम देंगे। अताउल्लाह तारड़ सानियात सवाद पर बयान देने से पहले कौम को पंजाब संवाद के सानियात में होने वाली अमवात का जवाब दें। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की मरी में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद की शिरकत। ज़राए का कहना है कि अहम कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत की गई। मरीम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। मुशावरती इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जाए। नवाज शरीफ ने बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाज़ुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत के इक़दाम खुसूसन मुआशी सूरत हाल की बेहतरी वाले इक़दाम की भी तायद की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशी सूरत हाल के बाद के उमूर पर आगाह किया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। दोनों सदर के दरमियान सख्त जुमलों और इल्ज़ामात का तबादला हुआ। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख के 17 जुलाई को लिखे गए खत के जवाब में लाहौर चैम्बर के सदर अबूज़र शाद ने न सिर्फ इनकी पॉलिसियों का आड़े हाथों लिया बल्कि इनसे फौरी इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है। अबूज़र शाद ने इल्ज़ाम मायद किया कि आतिफ इकराम कारोबार मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। दूसरी जानब सदर FPCCI आतिफ इकराम ने लाहौर चैम्बर के सदर के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती मीटिंग्स के दौरान इनका रवैया इजलास के मकसद और फ़ज़ा को नुकसान पहुंचाने का बाइस बना। उन्होंने कहा कि इस रवैये से न सिर्फ वक्त ज़ाया हुआ बल्कि कारोबारी नुमाइंदों की साख को भी ठेस पहुंची। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान असम्बली के नाअहली से मुतालिक रेफरेंसेस मुस्तरद कर दिए और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रोलिंग जारी कर दी है। रोलिंग में कहा गया है कि अदालती फैसले के बगैर किसी मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवामी राय को दबाने के मुतरादिफ है, जो जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। इख्तिलाफ राय को दबाने के बजाय सुना जाना चाहिए। उन्होंने चार्टर ऑफ असम्बलीज़ की तजवीज़ देते हुए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मशवरा दिया ताकि ऐवान का तकद्दुस और जमहूरी अमल बरकरार रखा जा सके। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर KP मीना खान अफरीदी कहते हैं कि हमने किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया। मरी में हमारे MPA औरंगज़ेब का होटल मिसमार किया गया, अरबों रुपयों की सरमायाकारी को गिराया गया। इस जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगी। PTI MPA औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। प्रॉपर्टी के होटल के तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान की चौधरी शुजात हुसैन पर तनकीद। कहती हैं कि 2002 में मुझे काबीना डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई और MBBS डॉक्टर होने के बावजूद 18 इदारों की निगरानी सौंप दी गई। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि शौकत अजीज़ ने बताया कि यह जिम्मेदारी चौधरी शुजात की हिदायत पर दी गई है। जबकि नोटिफिकेशन लेकर चौधरी शुजात के पास पहुंची तो चौधरी शुजात ने कहा, दफ्तर और गाड़ी मिल गई है तो ऐश करो, पाकिस्तान में काम कौन करता है। नाज़रीन, पंजाब के बाद मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया है। हैदराबाद, दादू, तंगवानी, घोटकी, सजावल और गिरदरवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में मिट्टी के तूफान, तेज़ हवाओं के झक्कड़ और गहरे बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसके बाद कई इलाके तारिकी में डूब गए। कहीं हल्की, कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है।
PDMA का पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं और मुल्हिका नालों में फ्लड बारे प्री अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं में पानी के गैर मामूली इजाफे और सैलाब का खदशा है। 21 जुलाई से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। 22 जुलाई दरियाए चनाब, जेहलम से रावी, सतलुज और सिंध और इनसे मुल्हिका नदी नालों और निशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। सुबह भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा पाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तलहा अहमद को इनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी और वज़ीर-ए-आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तादाद की एक मिसाल है। तलहा अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पज़िराई और हौसला अफजाई पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 11 की शाह नजफ कॉलोनी में मुसलसल 12 रोज से बिजली की बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी अजरन बना दी। ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस इलाका मकीन शदीद गर्मी में परेशान। अहलियान इलाका का कहना है कि वापडा हुकाम बिजली की बहाली के लिए मुबैना तौर पर पैसे तलब कर रहे हैं। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी MQM पाकिस्तान के सेक्टर ऑफिस पहुँच गए। उन्होंने सेक्टर इंचार्ज के खिलाफ भी शदीद नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पूरे इलाके में MQM पाकिस्तान का एक रहनुमा शमी मुबैना तौर पर पैसे लेकर बिजली चलाता है, जबकि 12 दिन से खराब ट्रांसफार्मर के लिए अब इलाका मकीनों ने रकूम तलब की जा रही हैं और मुजाहिरीन ने चेयरमैन MQM पाकिस्तान और गवर्नर सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए बिजली की बहाली यकीनी बनाएं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाबज़दा इलाकों का जायज़ा लेने खुद चकवाल पहुँच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाबज़दा इलाकों का भरपूर फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने चकवाल में सैलाबी रेले से मुतासर इलाकों का मुआयना किया और तकिया शाह मुराद, अम्परपुर, मंगल नलियानी, ढमन ब्रिज और धिदोवाल का फ़ज़ाई दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर घरों, रोड्स और पुल का जायज़ा लिया। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह का शुक्र है पूरे पंजाब में इंतज़ामी इदारों की गफलत या कोताही की वजह से अमवात नहीं हुई। डूबने, छतें वगैरह गिरने और करंट लगने से हलाकतें हुई, लेकिन हुकूमती इदारों का रिस्पांस काबिल तहसीन है। उन्होंने हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर रात के तक फील्ड में मौजूद रहें। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। आज़ाद कश्मीर की सीज़फायर लाइन पर जेहलम वैली के वो इलाके जो बरसों महरूमी की तस्वीर बने रहे, अब तरक्की के सफ़र पर गामजन हैं। पथरीले रास्तों पर जहां हर कदम आजमाइश था, वहां पाक फौज ने खामोशी से उम्मीद का चिराग रोशन किया। देखते हैं मुजफ्फराबाद से हमजा कातिल की खुसूसी रिपोर्ट। कहते हैं पहाड़ साकित होते हैं, मगर जेहलम वैली के पहाड़ गम के गवाह हैं। मोड़ा, सादिक और गिरदुनवा के देहात जो मौसम, वक्त और हुकूमती बेहिसी का बोझ उठाते रहे, आज पाक फौज के दिफाई बजट से बनने वाली सड़क के बायस नई सुबह देख रहे हैं। ये सड़क सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि दुआओं, कुर्बानियों और लाजवाल सब्र का समर है। इलाका मकीन कहते हैं बरसों पुराना ख्वाब अब हकीकत बन रहा है, क्योंकि हर मुश्किल में एक ही वर्दी थी जिसने हमेशा हमारा साथ दिया। फौज के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ कोई बीमार हो जाए तो हमें कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ता है। फौज के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। हम अब वो अल्फाज नहीं है जो हम बयान करें। ये रोड पाक फौज बना रही है, ये पाक फौज की बड़ी मेहरबानी है और ये तो हमारी सहूलत है, क्योंकि हम पहाड़ों पे रहते हैं, हमें मरीज ले जाना मुश्किल है। कोई बीमार हो जाता है, चारपाई पे उठा के ले जाते हैं, वो रास्ते ही में दम तोड़ देता है, मगर ये फौज का ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। सड़क की तामीर का अमल अब सिर्फ जमीन पर नहीं, दिलों में यकीन की जंजीर भी बुन रहा है। फासले मिट रहे हैं, पहाड़ी बस्तियों में रुका वक्त का पहिया चल पड़ा है। मकामी अफराद ने पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हुए हुकूमत से सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया, क्योंकि अगर इन वादियों को रास्ता दिया जाए तो नस्लें बदल सकती हैं। कैमरा टीम के साथ हमजा काटल, ABN न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।